ਜੇ ਸौ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਾਏ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਭਾ ਬਹਿਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਾਣਨ ਅਵਿਰਠਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਨ ਸਰਿਠਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪ ਪਨਿਠਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ, ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭੈ ਮਾਲ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ।
ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਕੋ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਸ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਾਧਵਾਰ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਧਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਾਧਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ, ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
थोड़ा हनेरा होने के कारण करके इसनूं चंगी तरह दिखाई नहीं सी दे रहा, पर ज्यों ही नेड़े गया तो पत्थर ते ध्यान पै गया। इन्हें की कीता कि उस पत्थर दे पासे दी हो करके लंघ गया, भी एवें किते ठेडा ना वज जावे, किते सट ना खा बैठा, शरीर नूं कोई चोट ना पहुंच जावे। ये पत्थर तो थोड़ा जा पासे हो करके ते अगे लंघ गया। एक दूजा व्यक्ति थोड़ी देर बाद आया, कहन लगे भी उस व्यक्ति नूं जदों ये पत्थर सामने तो करके मिलिया, सामने दिसिया, उन्हें ध्यान किया भी जे ते मैं इहदे तो पासे दी हो करके लंघ जावां ते मेरा कोई नुकसान नहीं होएगा। पर इंज भी हो सकता भी संध्या का समा होया पै, जे होर हनेरा होवेगा ते पत्थर दिखाई तेनू हट जाएगा। ते जे किसी इस तरह के व्यक्ति नूं जिन्हों अखां तो घट दिसदा होवे, जां कई बारी असीं मोटरसाइकिल गड्डी बड़ी तेज भजा करके लंघदे हां, ते जे किते ओदी नज़री ना पिया ते ओनू इहदे नाल ठोडा वजिया ते हो सकदा भी ओनू सट लग जाए। उन्हें की कीता भी इस पत्थर नूं उस रस्ते तो पासे करके ते फिर अगे लंघिया। ये मैं बेनती तां सांझी की भी जिसने ते सिर्फ अपना स्वार्थ जानिया, उन्हें ते इन्नी कुछ सियानत वरती है भी पत्थर तो पासे हो करके ते अगे लंघ गया, ठुडा खाण तो बच गया, सट खाण तो बच गया। पर जिस व्यक्ति ने यह सोचा है भी मैनू ते चंगा भला दिसदा है, मैं ते पासे दी हो करके लंघ जावांगा, हो सकता है भी कोई कमजोर नजर वाला, हो सकता है कोई बुजुर्ग इस रस्ते तो लंघे, हो सकता है भी कोई गड्डी या मोटरसाइकिल ते तेज स्पीड नाल लंघे ते ओदा ये पत्थर नुकसान ना करे। ये सोच करके उसने पत्थर नूं पासे कर दिता है। ध्यान रखिया जी, मानस सिर्फ वो है जिहड़ा पासे हो करके लंघ गया, देवता रूप वो है जिसने किसी दूजे का भला सोचा। ते याद रखना, धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी इस करके अपने गुरु तो बलिहार सदके हुंदे ने ते कहंदे ने, जिन मानस ते देवते किए। कहन लगे मैं अपने गुरु तो तां बलिहार जाना भी उन्हें मैनू स्वार्थी नहीं बनाया, उन्हें मैनू परोपकारी बनाया है, उन्हें मैनू दूजियां दा भला करने वास्ते बनाया है, उन्हें मेरे जीवन के अंदर परोपकार करने की भावना पैदा कर दी है। इस करके मैं अपने गुरु तो बलिहार हुंदा हाँ, इस करके अपने गुरु तो सदके जांदा हाँ। और सच जानिया दे इस परोपकार की भावना का प्रगटा जे बिल्कुल प्रतख ते वड्डी ते सब तो सौखी उदाहरण वेखनी चाहो ना, ते धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन विच है। वो भी ये कह सकते सन भी गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां ने जंजू नहीं सी पहनिया, जे अज तुहाडे जंजू लादे पए ने ते मैं की लैणा इस गल दा। पर नहीं, स्वार्थ गुणा नहीं विखाया, सगों परोपकार की भावना विखाई है भी गुरु का सिख इस तरह का बनेगा कि वह अपने प्राण जिहड़े ने किसी दूजे वास्ते भी लगाउण वास्ते तैयार हो जाएगा, जिथे किते उन्हां दे जिहड़ा है भी हक की गल आवेगी, जिथे उन्हां नाल कोई जुल्म होवेगा, कोई धक्का होवेगा, गुरु का सिख जिहड़ा है उत्थे सामने अपना बलिदान देण तो भी जिहड़ा है संकोच नहीं करेगा। मैं तां बेनती सांझी कीती है, अज मैं विशा लैण जा रहा भी गुरु के सिखां दा जीवन किहो जिहा हुंदा है। पहली शुरुआत गुरबाणी तो कर दी है ते सतगुरु ने नाल लाखिया भी करत ना लागी वार, गुरु नूं अजिहा करदिआं कोई देरी नहीं लगी। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, कोई देरी नहीं लगी। ते मैं बेनती करदा, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने जदों ये शब्द गायन किया है ना सज्जन दी, उस धर्मशाला विच जदों पढ़िया गया, सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। इस सज्जन इस शब्द नूं सुन करके उस वेले ही इनू अपना आपा अगे दिसन लग पिया ते सतगुरु गुरु नानक साहब के चरणों में हाजिर होया भी सतगुरु आ जिहड़ा शब्द गायन कर रहे हो, ये ते मेरी भी हालत इस तरह दी है, मेरा जीवन इस तरह का, कृपा करो रहमत करो, मैनू इहो जे भैड़े जीवन तो छुटकारा दिवा दिओ। ते धन गुरु नानक साहब महाराज ने रहमत करके सचमुच उसनूं सज्जन बना दिता है, उहदे जीवन विचों ठगी पासे कर दिती है, उहदे जीवन विच सगों परोपकार भर दिता है। जिन्हों सतगुरु आखदे ने, जिन मानस ते देवते किए करत
ना लागी वार, उन्होंने कोई देर ही नहीं लगती। हुण जिहड़ा मैं विशा आप जी दे नाल साझा करना चाह रहा सां, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने बख्शिश कर दी भी गुरु का सिख अपने गुरु तो इस करके बलिहार हुंदा है कि उन्होंने इस तरह का सुंदर सुचज्जा जीवन गुरु ने बना के दे दिता है, समझा करके दे देता है। भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां ने अपनियां वारां दे विच गुरु साहिबानां दा जीवन, भगतां दा जीवन, गुरु के सिखां दा जीवन, सिख दी जीवन दी मर्यादा इत्यादि बहुत सारे विषय जिहड़े ने प्रगट कीते ने। भाई गुरदास जी दी 12वीं वार है ते 12वीं वार दी पहली पौड़ी इहदी मैं व्याख्या आप जी दे नाल सांझी करन लगा। शुरुआत करदे ने गुरबाणी दी विचार ये मैं बेनती करदियां कि हर एक सिख वास्ते सामने लगा होया शीशा हुंदा है ते शीशा साडी शक्ल उदों विखांदा है जदों असीं शीशे दे सामने होवांगे। शीशा शक्ल उदों विखावेगा जदों शीशे दे सामने होवांगे। एक बेनती होर, शीशे दे जदों असीं सामने हो जाइए, साडी दस्तार ते कोई मिट्टी लगी होवे, साडे मूँह दे उत्ते कोई रंग लग्या होवे ते शीशा जिहड़ा है भी दस देगा भी सज्जना तेरे मूँह दे उत्ते कोई कालख लगी है जां कोई दाग लगा है, साफ कर ले। पर शीशे ने कदे इस तरह नहीं होया भी शीशे विचों हाथ बाहर निकलिया होवे तो साडे मूँह ते मारे भी साफ हो गई मिट्टी, ऐसा कदे नहीं होया। करना किस नूं पैंदा है? जिहड़ा शीशे दे सामने खलोता उहनूं करना पैंदा है। हुण गुरबाणी ने सानू जीवन जाच दर्शा दी है, शीशा रूप सानू विखा दिता है। जीवन विच जे किते कालख लगी है, मैल लगी है, रोग लगे ने विकारां दे ते साफ किस नूं करने पैणगे? सानू करने पैणगे, मैनू करने पैणगे। आओ इस गल नूं जाणीए भी भाई गुरदास जी आखदे ने, कहन लगे बलिहारी तिना गुर सिखां जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा। भाई गुरदास जी उन्हां गुरु के सिखां तो बलिहार होने की गल करते हैं, कुर्बान होने की गल करते हैं, जिन्हां बारे उन्होंने लिखा भी मैं उन्हां सिखां तो कुर्बान हाँ जाए जिन्हां गुर दर्शन डिठा, जिन्हां ने गुरु का दर्शन जा करके वेख्या। एक बेनती होर, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच जदों बलिहार अखर आया जां ते गुरु तो बलिहार होने वास्ते आया ते जां सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने यह भी वरत्या भी मैं उन्हां तो भी बलिहार, उन्हां तो भी कुर्बान हुंदा हाँ जिहड़े रब दा जप करदे ने, रब दा सिमरन करदे ने, जिहड़े परोपकारी जीवन बना लैंदे ने। गुरु तो बलिहार होने की पंक्ति की उदाहरण मैं सांझी कर दी है। बलिहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवा ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का वचन तुसीं पढ़दे हो ते उत्थे हजूर ने आख्या हौं कुर्बाने जाऊं तिना कै लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम तिना कै हौं सद कुर्बाने जाऊं। मैं उन्हां तो भी कुर्बान हुंदा हाँ जिहड़ा तेरा नाम लैंदे ने। ते इत्थे भाई गुरदास जी ने लिखिया है बलिहारी तिना गुर सिखा, मैं उन्हां गुरु के सिखा तो बलिहार हाँ जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा, जिन्हां ने जा करके गुरु दा दर्शन कीता, गुरु दा दीदार कीता है। इत्थे बेनती आप संगत दे चरनां विच असीं जिन्ने भी बैठे हैं इस गल नूं आपो अपनी विचार रूप विच वेखीए भी असीं गुरु दा दर्शन करना किहनूं कहंदे हैं। वध तो वध वधेरे तौर पर जिन्नी को सानू समझ लगी है ते असीं की आखदे हैं भी जिवें फर्ज करो भी गुरुद्वारा साहब अंदर एंटर हो गए, दरबार साहब के सामने आकर के मत्था टेक दिता, हाथ जोड़ करके अपनी बेनती कर ली, किसी ने परिक्रमा कर ली जां परिक्रमा करके को 5-7 मिनट बैठ गया ते चलिया गया ते बाहर जाकर के आखेगा भी मैं की करके आया, गुरु दा दर्शन करके आया। जे ते सारी उम्र ही ऐसा करते रहे ते याद रखना बाणी ने जिक्र किया है भी इस तरह का जिहड़ा दर्शन तुसी मन्नी बैठे हो ये दर्शन नहीं है। ते सतगुरु जी तुसी दसो भी कैसा दर्शन है, जे ये दर्शन नहीं है तो ये की है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਿਠੈ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਜਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। तो फिर दर्शन की होया? गुरु दे शब्द दी विचार। गुरु दे शब्द दी विचार असल विच गुरु दा दर्शन है। इत्थे एक भुलेखा ये ना खा बैठिए भी शब्द दी विचार करन दा भाव ये है भी स्टेज लगी है ते मेरे वांग गल विच हजूरिया पाया ते शब्द दी विचार करनी शुरू कर दी। ऐसा सारे नहीं कर सकणगे, ऐसा सारियां दे वस दी गल भी नहीं। ते ऐसे जे सारी करन लग पैण ते सुनेगा कौन? सुनाया किस ने जा रहा? तो असल में शब्द की विचार का भाव तो सौखा अर्थ मैं आप जी के सामने रख दिया। गुरु के शब्द की एक एक पंक्ति सुनी ते ओदे अनुसार देखना भी मेरा जीवन किथे खलोता है, मैनू गुरु ने की आख्या है, मेरे वास्ते गुरु का की उपदेश है। जिस वक्त मैं ये विचार करन लग पवां ते उस अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर दियां, फिर होवेगा गुरु का दर्शन। क्योंकि जेड़ा सिर्फ कला इहो जिहा दर्शन है जिहदी मैं उदाहरण पहला सांझी कीती है, इहो जिहा दर्शन ते सारा संसार कर रहा है। माफ करना बहुत सारे साडे विचों इस तरह दे होणगे जिहड़े हर रोज दर्शन करन ते आउंदे ने, पर हो सकदा भी रोज गोलक दे दर्शन करके तुर जांदे होण, रुमालियां दे दर्शन करके तुर जांदे होण, बिल्डिंग दे दर्शन करके तुर जांदे होण, पर जे बैठ करके सतगुरु दी बाणी दा एक भी शब्द नहीं सुनिया, एक भी शब्द नूं अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, तो याद रखना फिर उस तरह का कीता होया दर्शन गुरु का दर्शन नहीं है। तो फिर गुरु का दर्शन की है जिहदी मैं विचार सांझी कर रहा। हजूर आखदे ने डिठै मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। तो गुरु के शब्द की विचार करनी ही गुरु का दर्शन है, गुरु का दीदार है। जे सिर्फ इस उदाहरण तो समझ नहीं ना पई, क्योंकि सारियां गल्लां समझ भी नहीं आउंदियां, ਉਹਦੇ दो कारण होंदे ने। एक ते असीं समझना नहीं चाहुंदे, दूजा असीं ध्यान नाल सुणदे भी कोई नहीं, साडा ध्यान इधर उधर हुंदा भी कौन आया ते कौन गया। थोड़ा ध्यान दिओ। सतगुरु नूं सिर्फ सामने तो वेखना दर्शन नहीं है, इहदी उदाहरण गुरु के इतिहास विचों भी तुसीं वेख सकदे हो। मैं अक्सर बेनती कीती है, धन सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का भतीजा, जिदी शादी हुई है, जिदा ब्याह होया है गुरु अंगद साहब महाराज जी की सपुत्री बीबी अमरो दे नाल। ते सारे रिश्तेदार ब्याह वेले इकट्ठे ही हुंदे ने, ते ये बिल्कुल सुभाविक गल है भी गुरु अमरदास पातशाह भी अपने भतीजे दे ब्याह दे उत्ते बरात भी शामिल होए होण। ते ये भी होया होएगा भी उन्हां दी मिलनी भी जिहड़ी है, जां उस वेले गुरु अंगद साहब नूं उन्हां ने वेखिया भी, दर्शन कीता भी, पर वो दर्शन इन्ना सार्थक नहीं बन सकिया। जिस वेले दा दर्शन सार्थक बनिया वो इंज बनिया जदों एक जोगी ने यह आख दिता भी तू ते निगुरा है ते मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता है। अंदर दा चैन गवाच गया, अंदर दा सहज गवाच गया। ते कहन लगे वो बेचैनी सारी रात दी उस वेले दूर हुई है जदों अमृत वेला होया ते बीबी अमरो उच्ची आवाज विच बाणी दा पाठ करदी है। उस बाणी दी पंक्ति नूं सुन करके ते बाबे अमरदास दे अंदर सहज बनिया, तरवास बनिया ते उन्हें बेनती कीती भी बचिए ये बचन जिस दे हन जिन्हें मैनू रात दे बेचैन होए नूं चैन लिया दिता है, सहज लिया दिता है। मैनू दस भी बचन किस दे ने, मैनू उहदा दर्शन करा जा। ते याद रखना जिस वक्त उदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद साहब महाराज जी का दर्शन किया है, उस वेले अजे दर्शनां दी शुरुआत हुई है। ते सचमुच दर्शन दीदार दे करन दी क्रिया जे कबूल हुई है ते कहन लगे भी उस क्रिया नूं कबूल होने विच 12 साल का समा लगा है। ते फिर की बनिया है, जिस एक व्यक्ति नूं यह कह करके दुरकार दिता गया सी भी तू ते निगुरा है,
ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਔਰ 18 10 20 ਭਾਵ 1430 ਅੰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। तो भाई गुरदास जी आखते ने, बलिहारी तिना गुरसिखां जाए जिन्हां गुरदर्शन डिठा। फिर कहन लगे भी गुरु के सिखां दे अंदर अगला एक जीवन दा सच्चा बोल प्रगट हुंदा है, ते उन्हां ने नाल आख्या, बलिहारी तिना गुरसिखां पैरी पै गुरसभा बैठा। मैं उन्हां गुरु के सिखां तो भी बलिहार हाँ, कुर्बान हाँ, जिहड़े सत संगत विच जा करके बैठ जांदे ने। मैं दर्शन वेले शुरुआत कर ली सी, बहुतियां दी गिनती कुछ इस तरह की भी आए, परिक्रमा की, मत्था टेकिया ते नाल दी नाल बाहर निकल गए। बहुते मेरे वर्गे सिर्फ लंगर खाण वास्ते आउंदे ने ते बहुते उधर नूं भज लैंदे ने। असीं जरूर कोशिश यतन करिए भी जदों गुरु की हजूरी विच आईए ना, घट्टो घट जे कीर्तन हो रहा ते एक शब्द ते पूरा सुनिए। जे गुरबाणी की कथा हो रही है तो जिस विषय ते गल हो रही, घट्टो घट एक गल ते पन्ने पल्ले बन करके तुरीए, सुनिए ते सही। पर सानू जिहड़ा है भी सभा विच संगत विच बैठण दा अजे तक सलीका बहुत घट है। खैर भाई गुरदास जी लिखते ने, बलिहारी तिना गुर सिखां पहरी पै गुर सभा बैठा। कहन लगे जिन्हां नूं दर्शन करन दी जाच सिखाई है ना, उन्हां ने सत संगत विचों भी दर्शन कीता है ते सत संगत विच आ करके बैठ गए। इत्थे कौन बैठदा है? गुरु रामदास महाराज नूं पुछो भी इत्थे बहिंदा कौन है? हजूर आखदे ने भी इत्थे बैठण वाले जिहड़े ने उन्हां दा गुण इह है, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। इत्थे सचियार होने वास्ते सचियारे सिख आ करके बैठते ने। ते भाई गुरदास जी ने आख्या, मैं इहो जिहां तो ही बलिहार हुंदा हां, इहो जिहां तो कुर्बान हुंदा हां। फिर सत संगत विचों जिहड़ा उपदेश मिलदा है, उहनूं कमाउण वाले सिखां तो भी बलिहार है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अगली पंक्ति, बलिहारी तिना गुर सिखां गुरमत बोल बोल दे मिठा। मैं उन्हां सिखां तो भी कुर्बान हाँ जिन्हां ने दर्शन दीदार करके सत संगत विच बैठ गए ने, ते सत संगत विचों जिहड़ा उपदेश मिलिया है ते गुरमत बोल बोल दे मिठा। गुरु की मत लै करके अपनी जुबान तो हमेशा मिठा बोल बोलते ने। याद रखना, बाबा फरीद साहब जी ने एक बड़ा सुखाला जिहा सलोक सानू साडी झोली विच पाया। ते बाबा फरीद साहब जी किरपा करदे आखदे ने भी जे कोई व्यक्ति रब नूं मिलना चाहुंदा है ना, जे परमात्मा दे नेड़े होना चाहुंदा है, जे रब दा कोई दर्शन दीदार करन दी इच्छा भी रखदा है ना,
ते कहन लगे जे तो प्रिया दी सिक हियाओ ना ठाहे कहीदा, जे तेरे अंदर रब दे मिलन वास्ते खिच है तांग है, ते कहन लगे भी कदी भी कौड़ा बोल बोल करके किसी का हिरदा ना दुखाई, सगों जुबान तो मिठा बोल बोली। एक बेनती होर, जदों कोई पुत्र जां कोई विद्यार्थी कोई बच्चा लायक निकले, चंगे गुणा करके प्रगट होवे, ते जिथे उस बच्चे नूं शाबाशी दिती जाती है उत्थे उहदे माता पिता नूं भी शाबाशी दिती जाती भी फलाणे दे बच्चे सन, बड़े चंगे संस्कार दिते ने, ते उहदे माता पिता नूं शाबाशी हुंदी है भी इन्हां ने बड़ा सोहना अपने बच्चे नूं जिहड़ा है ओह लायक बनाया है। ये गुण इहदे कोलों इन्हां ने सिखे ने। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़ करके बेनती करके आप संगत नूं आखना चाहुंदा हाँ, भाई गुरदास जी आखदे ने बलिहारी तिना गुरसिखां गुरमत बोल बोल दे मिठा। कहन लगे भी मैं जे उन्हां गुरु के सिखां तो बलिहार हां जिन्हां ने गुरु की मत लै करके मिठा बोल बोलना जिहड़ा जीवन विच अख्तियार कीता है, ते इह गुण उन्हां कोलों अपने गुरु कोल आया है, क्योंकि गुरु ने उन्हां नूं दस्सिया है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। इस तरह का सुभाव है मेरे मालक का, ते जिहड़ा उस दा पुजारी है, जिहड़ा उस दा सेवक है, ते उहदे विच भी मिठ बोलण वाली जिहड़ी है वो गुणात्मक शैली प्रगट होवेगी, उहदे अंदर भी मिठा सुभाव बोलण दा आ जाएगा। ते इहदी मैं प्रतख उदाहरण अक्सर दिती है। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी की बख्शिश रहमत के सदका जदों गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए ने ना, संगत सारी सभा दे विच बैठी हुई है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज आसन ला करके बैठे हुए ने। गुरु अंगद साहिब दा सुपुत्र बाबा दातू जी आया ते भरे दीवान विच ठुड्डा मार दिता है। इस गल दा रोष प्रगट कीता है भी पुत्र मैं सां ते गुरता गद्दी मैनूं मिलनी चाहिदी सी। ते कहन लगे भी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिन्हां दे जीवन दा सहज, जिन्हां दे जीवन दा टिका, ते जिन्हां ने सचमुच इस वचन नूं कमाया होया, जिहदे कारण करके भाई गुरदास जी ने लिखिया बलिहारी तिना गुरसिखां गुरमत बोल बोल दे मिठा। कहन लगे भी जे अज दे समय विच किसी नूं ओए कह करके भी बुलावे ना कोई, ते कई बारी ऐसा होंदा है भी ये व्यक्ति उहदे ते बड़ा गुस्सा होंदा है ते हाथ चुकण तक जांदा है भी तू मैनूं ओए किवें कह दिता है। पर इधर गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं भरे दीवान दे विच बाबा दातू जी ने ठुड्डा मारिया ते कहन लगे ऐसा नहीं होया भी बाबा दातू जी नूं जिहड़ा भी धौन तो फड़ के थल्ले रख लिया होवे, ऐसा नहीं होया। सगों हाथ जोड़ करके आखे ने भी मैं 72 वरियां दा बुढ़ा शरीर है, हड्ड मेरे लकड़ वर्गे सख्त होए पए ने, किते इन्हां नाल तुहाडे चरण वज करके तुहाडे चरनां नूं ना सट लग गई होवे। इहो जिहा टिका, इहो जिहा मिठा बोल जिहड़ा सचमुच ही किसी नूं कील जावे, इस तो वड्डी शर्मिंदगी बाबा दातू वास्ते होर कोई नहीं सी हो सकदी इन्हां बोलां विचों। खैर गुरमत बोल बोलते मिठा, ये सुभाव गुरु के सिखां दा। फिर अगे आखदे ने बलिहारी तिना गुर सिखां पुत्र मित्र गुर भाई इठा। मैं उन्हां गुरु के सिखां तो भी कुर्बान जांदा हां जिहड़े गुरु भाइयां नूं अपने पुत्रां ते अपने मित्रां तो भी प्यारा समझदे ने। इठा दा अर्थ है प्यारा समझदे ने। इस वास्ते ते मैं अपने केवल गुरु तो सब तो वध बलिहार दाना भी जिसने गुर भाइयां नूं अपने पुत्रां ते मित्रां तो सब तो उच्चा ते वड्डा समझिया। क्यों? जिस वेले दंदमा साहिब की धरती ते मातावां ने आकर के कलगीधर पातशाह नूं पुछया भी जिस वक्त आनंदपुर साहिब दा विछोड़ा पिया ते 4 पुत्र असीं तुहाडे नाल तोड़े, सानू 4 पुत्र मैनू सभा विच दिखाई नहीं दे रहे भी कित्थे हन, जदों कि उन्हां 4 साहिबजादियां दी शहीदी हो चुकी है। ते कलगीधर पातशाह महाराज ने की आख्या सी सारी संगत विच हथ करके इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4। इन्हां सारियां नूं आख्या सी बलिहारी तिना गुरसिखां पुत्र मित्र गुर भाई इठा। वो गुर भाइयां नूं सब तो मिठा जानते ने, अपने पुत्रां नालों अपने मित्रां नालों भी इस इन्ना वड्डा सत्कार देंदे पए।
इस करके गुरु के सिख विच भी ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਝੂਠ बोल करके किसी दूजे के खिलाफ गवाही देंदा होवे, वो मेरा गुर भाई होवे ते मैं अपने पुत्र दा पक्ष ना पूरा गुर भाई वाले पासे गल करां भी ये मेरा पुत्र जिहड़ा भी झूठ बोलदा पिया है। गुर भाइयां नूं वड्डा प्यार, गुर भाइयां नूं वड्डा सत्कार, बलिहारी तना गुरसिखां पुत्र मित्र गुर भाई इठा। अगला गुण भाई गुरदास जी ने प्रगट किया ते कहन लगे बलिहारी तिना गुर सिखा गुर सेवा जान। मैं उन्हां गुरु के सिखां तो भी बलिहार हाँ, कुर्बान हाँ, जेड़े गुरु की सेवा नूं सब तो मिठा करके जानते हैं, सब तो वध प्यार करते हैं। इहदे बारे ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पंक्ति सानू खास तौर पर हिदायत देंदी है ते भाई गुरदास जी खास तौर पर इस गल नूं इंज लिखते पे ने कि मैं उन्हां गुरसिखां तो बलिहार हाँ जिहड़े गुरु की सेवा नूं सब तो प्यारी समझते हैं। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पंक्ति जानो, हजूर कृपा करदे आखदे ने भी जिहड़ा संसार दा सुख किसी राज हुकूमत विचों भी नहीं ना लभ सकदा, उस तो वड्डा सुख गुरु की सेवा विच है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लहिए। इहो जिहा सुख ते राज विचों नहीं मिलदा, जिहो जिहा सुख सेवा विचों मिलदा है। इहदी इतिहासक तौर ते एक घटना उदाहरण साझी करन लगा हाँ, फिर मैं समाप्ति करांगा। नवाब कपूर सिंह जदों जंगलों के विच गुरु के सिखां नूं जाना पै गया, पर फिर भी गुरु के सिखां ने जिहड़ा है दुश्मन दे विच ऐसी अपनी धाक जमाई है कि समा इस तरह का आया भी एक इलाके की कंगड़ा पुल ते रावणपुर की जिहड़ी है उन्होंने जगीर जिहड़ी है भाई सुबेग सिंह दे हाथ गुरु के खालसे नूं भेजी है। जदों गुरु के खालसे नूं नवाबी भेजी गई है, गुरु के खालसे ने प्रवान करन तो ना कर दी, पर भाई सुबेग सिंह ने फिर बेनती की ते जदों गुरु के खालसे ने प्रवानगी की गल की है ते कहन लगे भी ये नवाबी साडे किसी सेवादार नूं दित्ती जावेगी। ते जदों सेवादार की गल आई है ते कहन लगे भी उस वक्त घोड़ियां की सेवा कर रहे सन कपूर सिंह, कहन लगे नवाबी इन्हां नूं दित्ती जावेगी। मैं गल नूं थोड़े नेड़े रखां कि गुरु की सेवा नूं गुरु के सिख सब तो प्यारी जानते हैं। उन्होंने सामने भावें राज आ जाए, हुकूमत आ जाए, पर वो सेवा जिहड़ी है सब तो प्यारी ते सब तो अगे रखते हैं। ते कहन लगे नवाब कपूर सिंह ने पंज प्यारे साहिबाना दे अगे बेनती की भी नवाबी जिहड़ी है ये कबूल करन तो पहला मेरियां दो शर्तां ने। वो दो शर्तां ये ने भी सब तो पहली शर्त यह है भी जिस वक्त नवाबी की पोशाक मैनू पहनाई जाए तो यह नवाबी की पोशाक मैं पंज प्यारे साहिबाना के पैरों नूं छुहा करके पहनांगा। उहदा कारण यह सी कि पंज प्यारियां दे चरनां तो उच्ची ये पोशाक नहीं है, नवाबी नहीं है, पंज प्यारे साहिबान तो उच्चा कुछ नहीं है। ये शर्त कबूल की गई। तो दूजी शर्त उन्होंने जिहड़ी रखी सी, ध्यान दे करके सुनियो जिन्ने भी बैठे, दूजी शर्त ये रखी सी, कहन लगे भी कल नूं मैं नवाब बना, नवाबी की पोशाक मेरे कोल होवे, नवाबी की खास दस्तार जिगा कलगी मेरे कोल होवे, पर ऐसा ना होवे भी मैनू घोड़ियां की सेवा करन तो वर्जित कर दिता जाए। सेवा मैं उस तरह ही करांगा। मैं अक्सर बेनती की है, जिस किसी व्यक्ति नूं धर्म स्थान की कोई थोड़ी मोटी भी सेवा मिल जाए ना, ते मेरे वर्गियां दा हंकार इन्ना सिर ते चढ़ जाता है भी अपना ही चाह का जूठा गिलास मैं धोने वास्ते तैयार नहीं है, वो भी लभांगा भी सेवादार आवे ते वो लै करके जाए। जिथे संगत दूरों दूरों आकर के एक दूजे को इंज कह ली भी खो खो करके भी मैनू बर्तन दिओ, मैं सेवा करनी है, उत्थे थोड़ी बहुती किसी नूं पौधेदारी मिल जाए तो अपना भी जूठा गिलास धोने वास्ते तैयार नहीं है। इथों तक भी लंगर विच ही रख आवे, धोने वाले भांडियां विच बहुतियां दा हालात इस तरह का है। पर सेवा सिखो ते नवाब कपूर सिंह तो कहन लगे नवाबी मंजूर है,
पर मैं घोड़ियां दी जे सेवा कर रहा तो मैनू सेवा उवें दी उवें करन दित्ती जावे, मैनू मेरे तो सेवा ना कोई जावे। कारण यह है कि उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ी है कि जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लही है। जेड़ा सुख सेवा विच है ना वो सुख ते राज कीतियां भी नहीं है। इस करके भाई गुरदास जी आखते ने बलिहारी तिना गुर सिखा गुर सेवा जानन अबरिठा। गुरु की सेवा नू सब तो प्यारी जानते हैं। आखिर पंक्ति बलिहारी तिना गुर सिखा आप तरे तारेन सरिठा। मैं उन्हां गुरु के सिखां तो भी बलिहार हाँ जिहड़े आप तर जाते हैं ते सारी सृष्टि नू तारदे ने। जिहदी मैं शुरुआत की सी बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की। ये गुरु का सिख जिहड़ा है वो परोपकारी सोच वाला है, निजी ते स्वार्थी सोच वाला नहीं, ये परोपकारी सोच वाला है। इनू सौखे लफ्ज़ां विच कहना भी जिहड़ा सच मैनू पता लग गया वो सच मैं दुनिया नू भी दसां, जिस झूठ बारे मैनू पता लग गया इस झूठ बारे दुनिया नू भी खबर करां। इस वास्ते परोपकारी बिरती गुरु के सिख दी, जिहदे वास्ते आखदे ने बलिहारी तिना गुर सिखां आप तरे तारेन सरिठा। ते याद रखना धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने ते साडी इस संबंध विच होर जिम्मेवारी लाई है। तो आखदे ने जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। ये जिम्मेवारी आप जपै दी गल पहला है ते अवरा नाम जपावे गल दूजी है। पर दूजी दा भावे नहीं भी करनी नहीं है। गुरु का सिख परोपकारी रवे, वो भावें अपने कलम राही सच बोलण दी हिम्मत रखदा होवे। जिवें असीं सिटी मीडिया दे परिवार नाल जुड़ करके बैठे हैं भी 25वीं वरेगंढ भाव 25वें साल विच प्रवेश हो रहा है। जे सच दी कलम दिख रही है तो याद रखियो तां चलदी पई है। बाकी तुसी पढ़न वाले जड़े हो वो ज़्यादा जानकार हो। मैं सिर्फ बेनती सांझी करनी सी भी गुरु का सिख परोपकारी सोच इस तरीके की रखदा भी आप तरे तारेन सरिठा। ते फिर भाई गुरदास जी आखिर विच आखदे ने गुर सिख मिलिया पाप पनेठा। ऐसे गुरु के सिखां नूं मिल लईए, उन्हां दी संगत होवे, उन्हां दा दर्शन होवे ते साडे अंदरों पाप दूर हो जाते हैं। केड़े गुरसिख संखेप विच कह करके जिन्हां ने गुरु का दर्शन किया है, जिन्हां नूं सत संगत विच बैठना आउंदा है, जिन्हां ने सत संगत विचों मिले उपदेश सदका मिठ बोलड़ा दा गुण अंदर धारण किया है, जिन्हां ने गुरु की सेवा नूं सब तो उत्तम जानिया, जिन्हां ने गुर भाइयां नाल वड्डा प्यार किया है, जिन्हां ने फिर सारे तारेन सरिठा परोपकारी सोच बनाई है। ऐसे गुरु के सिखां नूं मिलिया पाप पनेठा, पाप दूर हो जाता है। ते गुरु का सिख धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में अरदास करता है। इस अरदास ते भरोसा भी करो ते इस अरदास ते काम भी करो। कला अरदास कह करके पासे नहीं हो जाइदा कि सानू उन्हां गुरु के सिखां दा मेल होवे जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। उहदे वास्ते सानू अपनी संगत सुधारनी पवेगी। ये भी गल जरूरी है, कला कहन नाल नहीं है, सानू अपनी संगत सुधारनी पवेगी। संगत का भाव जिथे असीं बैठते हैं भले मनुखां दी संगत करिए। तित जाए बहु सत संगति जिथे हर का हर नाम मिलोइया। उत्थे जा करके बैठिए, चंगी सोच के मालक बनिए, चंगी विचार अपने जीवन में धारण करिए ताकि सचमुच असीं गुरु के वो प्यारे सिख बन जाइए। तो भाई गुरदास जी की ये 12वीं वार की पहली पौड़ी की विचार करदे गुरमत विचार करदे होइयां बेअंत प्रकार दी भुल्लां आप संगत बख्शण जोग हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शण जोग हो। मेरियां भुल्लां मेरियां जान करके मेरी झोली विच पा देनियां। गुरु के शब्द की सिद्धांत की विचार जो आप संगत नाल सांझी कीती है। अरदास करनी कि साडे वर्गे सिर्फ दूजियां नूं सुनाउण तक ना सीमित रहण, साडा भी जीवन इस विचार गुरमत विचार अनुसार बन जावे। सारियां संगतां दा धन्नवाद, सिटी मीडिया परिवार दा धन्नवाद। पावन स्थान गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही 10वीं विखे तो आप समूह संगतां दे चरनां विच हाजरी भरी है। बोलदियां पासों भुल्लां दी खिमा फतेह नाल साझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी फतेह बुलाया करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।